Good morning, students. I hope you are fine. Class 6 Political Science का chapter number 4, that is key elements of a democratic government. Dear students, as you know that our third chapter, that is what is government, comes to an end, and we have also discussed its textual questions, and today we will discuss the chapter 4, that is key elements of a democratic government. In this chapter you will read about some of the key elements of and influence of the working of a democratic government. This includes people's participation, the resolution of conflicts, and equality and justice. So let's start reading. South Africa is a country that has people of several races. There are black people who belong to South Africa, whites who came there to settle, and Indians who came as laborers and traders. Maya Nidhu, an 11 years old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes. She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. There were many pictures of a young schoolboy of around 15 years of age. When she asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector Peterson. He had been shot by the police. Maya was shocked. Why? She asked. Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. Apartheid means separation on the basis of race. South African people were divided into white, black, Indian, and colored races. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live each other near each other, and or even to use common facilities. Maya could not believe her ears. Maya's mother sounded angrily when she spoke about life under apartheid. She told Maya that in those days hospitals were separate and no ambulance were same for the black peoples, and ambulance meant for white people would always be well equipped while one meant for black people was not. There were separate trains and buses. Even the bus stops were different for black and white people. Non-whites were not allowed to vote. The best land in the country was reserved for the white people, and non-whites had to live on the worst available land. Thus blacks and colored people were not considered to be equal to whites. देखो बच्चों, साउथ अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की रेसेस के लोग रहते थे। वहाँ ब्लैक पीपल, वाइट पीपल और इंडियंस थे जो एज ए लेबरर्स और ट्रेडर्स के सिलसिले में वहाँ सेटल हुए थे। तो माया निधु एक 11 साल की लड़की है, अपनी माँ के साथ हेल्प कर रही थी। उसे जब कुछ स्क्रैप बॉक्स की पुराने पेपर्स वगैरह मिले तो तस्वीरें देखते देखते उसने बहुत सारे नौजवान लड़कों की तस्वीरें देखी, जिनमें से एक की तस्वीर उठाकर अपनी माँ से पूछ दिया कि ये लड़का कौन है। माँ ने जवाब दिया कि ये पीटरसन लड़का है जिसको पुलिस ने मार दिया था। तो माया को काफ़ी शौक हुआ, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसको माँ ने बताया कि अफ्रीका उस टाइम उस पे ऐसी हुकूमत थी जहाँ पे अपार्थाइड ऐसा लॉ था। इस लॉ का मतलब है सेपरेशन ऑन द बेस ऑफ रेस, के ज़ात पात रंग नस्ल की बुनियाद पर सेपरेशन, एक दूसरे के साथ दूरी। साउथ अफ्रीका को मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड किया था। ब्लैक और इंडियन थे, कलर्ड थे, और मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दीज रेसेस वी आर नॉट अलाउड टू मिंगल विद। ये ऐसा कानून था कि जो एक दूसरे के साथ इनको मिक्स नहीं होने देता था। ना एक दूसरे के साथ ये उठ बैठ सकते थे, ना एक दूसरे के नज़दीक बैठ सकते थे। नेवर दे लिव विद ईच अदर और इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटी, या कि ये एक ही किस्म की सहूलत का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। इस किस्म का लॉ था। तो माया को काफ़ी शौक हुआ, तो माया को अपनी माँ की बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था। तो माँ ने उसको नाराज़गी गुस्से से कहा कि ये शी टोल्ड माया दैट इन दोज के उन दिनों की बात है कि यहाँ के इवन के हॉस्पिटल्स मेंट फॉर द वाइट पीपल्स वी आर सेपरेट, और जो हॉस्पिटल थे वाइट पीपल्स के लिए वो भी सेपरेट थे। उनके एम्बुलेंस अलग थे, उनको वेल इक्विप्ड मतलब अच्छी किस्म की सहूलियत थी। जबकि जो ब्लैक पीपल्स थे उनको उनके उन लोगों के लिए ऐसी सहूलत कोई भी मैसर नहीं थी। देयर वेर सेपरेट ट्रेन और बसेस भी उनके लिए सेपरेट थी, अलग थे, और उनके बस स्टॉप्स भी डिफरेंट थे फॉर ब्लैक पीपल लोगों के एंड वाइट पीपल। वाइट और ब्लैक के जो बस स्टॉप्स थे वो भी डिफरेंट थे। और जो नॉन वाइट्स हुआ करते थे देवर नॉट अलाउड टू वोट, उनको वोट देने का हक भी नहीं था। और जो कंट्री के अंदर बेस्ट लैंड होती वो रिजर्व रखी जाती थी किसके लिए, फॉर वाइट पीपल।
और जो वो टाइप का बाकी लैंड का हिस्सा रह जाता था, दैट वाज अवेलेबल टू फॉर द ब्लैक पीपल्स। दस ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वी आर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट्स। इसलिए जो ये ब्लैक लोग थे या कलर्ड वाले थे, ये इन लोगों के वाइट वाले लोगों के बराबर कंसिडर नहीं किए जाते थे। वन ब्लैक टाउन वाज साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। हेक्टर पीटरसन लिव्ड here, and he had his classmates join the protest against learning the Afrikaans language in school. This was the language that the whites spoke. Hector and the other school students were being forced to learn the language, but they wanted to learn their own language, Zulu. The South African people beat the protesters mercilessly and shot at the crowd. One of their bullets killed Hector. This was on 16 June 1966. 1966. The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader, Nelson Mandela, fought the apartheid system for several years. Finally, they succeeded in 1994. South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. तो देखिए, इसी सिलसिले को लेकर, इसी कानून को लेकर जो काले और सफ़ेद जो लोग थे, इनके दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म की जो लड़ाइयाँ चल रही थी। और ये जो था पीटर, ये हेक्टरसन जो मारा गया था, इनको स्कूल में फ़ोर्स किया जा रहा था कि अफ्रीकन लैंग्वेज सीखें। लेकिन ये जो बहुत सारे और इसी के साथ जो लड़के थे, इन्होंने प्रोटेस्ट की किसके अगेंस्ट, कि हम ये लैंग्वेज नहीं, अपनी लैंग्वेज आपके मतलब वो अपनी लैंग्वेज सीखना। दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू। और जो साउथ अफ्रीका के अंदर पुलिस, इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट की, पुलिस ने इन पर गोली चलाई, जिनमें से एक गोली किसको लगी, इसी हेक्टरसन को, और वो मारा गया। ये 16 जून 1966 की बात है। और जो ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जो ये ग्रुप था, इसकी लीडिंग, इसको कौन लीड कर रहा था, नेल्सन मंडेला। तो आखिरकार इन्होंने इसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया, तो फाइनली ये सक्सीड हो गए। और ये 1994 के अंदर साउथ अफ्रीका जो था, इट बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड विच नाउ पीपल आर कंसिडर्ड एज इक्वल। मतलब आज ये डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें हर किस्म की रेस के लोगों को इक्वली कंसिडर किया जा रहा है। तो आई होप एवरीबॉडी हैज़ गॉट इट। तो टुमारो इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट जो पैराग्राफ उठाएंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।